think and you should make up your mind that I shall do it at any cost. Mostly student, they belong to rural area, they belong to village side area, they are not properly guided. Whenever they are guided and they are taught properly, they just like you could say they show tremendous result. And you are the one of them. You are not properly guided, you are taught properly, because I'm teaching you from, you could say, old English and up to all modern literature as well. Today we are going to talk about modern literature, modern age, modernism, modern movement in English literature. आज हम बात करेंगे मॉडर्न एज की एंड मॉडर्न movement की in literature. We shall talk about and we shall discuss the writers, you could say the critics, writers. They have played ample role to promote, to uplift this age. We shall discuss how this age took place and what happened. People started thinking about modern literature, modernism, and modern movement. First of all, we should discuss what is modern. Modern in a sense that if we talk about Chaucer, mostly people say that the Chaucer was the first modern poet. Every age is modern to some extent. Talk about the medieval age, it was a modern when it came, because Chaucer was the first modern poet. Mostly people, he said that he is the father of English literature. He was the first modern poet. It means the contemporary age, contemporary poet, contemporary you could say writers and age, it was known to some extent modern age. एजरा पाउंड कहता है कि मेक इट न्यू, कि जो भी आप करें, वट एवर यू डू इट विद न्यू ट्रेंड, न्यू स्टाइल, न्यू वे, इट विल बी नोन एज मॉडर्न. कि जो भी आप काम करें, एजरा पाउंड कहता है कि वो क्या चीज़ बन जाएगी, उसे नए स्टाइल से करें, नए मेथड से करें, नए तरीके से करें, तो वो एक आपके लिए मॉडर्न बन जाएगा. जब हम सोचते हैं कि मॉडर्न क्या है, जिसने अच्छे कपड़े पहने, वो पर्सन हु इज़ वेल ड्रेस अप एंड ही इज़ हैविंग गुड ड्रेस, ही इज़ वेयरिंग गुड शूज़ एंड ही इज़ वेयरिंग ब्रांड शर्ट और like that dress, we say that he is a modern one. But here is another thing. We are not saying modern age in a sense the person is embracing good dress. You could say he is talking well, he's modern, talking a modern way and wearing good dress. He is not modern at all. लेकिन यहाँ पे मॉडर्निज्म का मतलब और है, मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्न एज का मतलब और है. यहाँ पे यूँ है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, लोग क्योस का शिकार हैं, लोग परेशानी का, क्राइसिस का, इन चीज़ों का शिकार हैं. किस एज में? मॉडर्न एज में. तो इसको समझना, मोस्टली लोग कहते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड मॉडर्न एज बिकॉज देयर इज़ a World War I and World War II. The people were totally disturbed and they produced such a complex literature we are unable to understand. They produce such a literature that is not comprehensible. So it's not it isn't like that. You can understand easily, it's not difficult. ये एज सिंपली किन चीज़ों का शिकार है, इस एज के अंदर क्या चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन है, इसमें डिस्टर्बेंस है, इसके अंदर डेवलपमेंट भी है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, इसके अंदर क्या है, इंसान क्राइसिस में है, लोग क्राइसिस में हैं क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हुई है. वर्ल्ड वार 1 का जो ड्यूरेशन है वो लिख लें, 1914 टू 1918. 1914 से लेके 1918. So it is the first world war. So in first world war
there are many people they were died. If we talk about the you could say, if you talk about the modern age का भी लिख लें, 1900 से लेके 1950, यानी 1900 से लेके 1950 तक लिख लें, ये क्या है, मॉडर्न एज है. और क्वीन विक्टोरिया की डेथ कब हुई थी? यस्टरडे आई टॉट यू अबाउट दिस. क्वीन विक्टोरिया की डेथ 1901 में हुई थी, ये भी लिख लें. हाँ जी. तो इस एज के अंदर टी.एस. एलियट ने वेस्टलैंड लिखी है, ठीक है. इस एज के अंदर हमें जोसेफ कॉनराड भी मिलते हैं जो नॉवलिस्ट हैं, टी.एस. एलियट भी हैं, जेम्स जॉयस भी हैं, और एलिज़ाबेथ बिशॉप भी हैं. तो ये बहुत सारे राइटर्स हैं जो हमारे पास, जी.बी. शाह भी, बर्नार्ड शाह भी, जॉर्ज बर्नार्ड शाह भी इसी एज के राइटर हैं, मॉडर्न एज के. टी.एस. एलियट भी इसी एज के राइटर हैं. तो ये क्रिटिक्स भी हैं टी.एस. एलियट, आपको पता है, ये पोइट्स भी हैं. तो अब हुआ यूं था कि 1910 में वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि 1910 में जो करैक्टर थे, जो ह्यूमन करैक्टर था, वो टोटली चेंज हो गया था. चेंज इन अ सेंस कि इससे पहले जो लोग थे वो ह्यूमनिज्म को मानते थे, वो जो थीरीज थी या जो उनके कंसेप्ट थे, इनसे पहले कुछ और थे. लेकिन इस एज में लोग क्या है, टोटली मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, इंडिविजुअलिज्म उनके अंदर आ गया है, ठीक है. एक्सपेरिमेंटेशन आ गया है, लोग साइंस को मारने लग गए हैं, लोग क्या है, इंडिविजुअलिज्म को मारने लग गए हैं, लोग सेल्फ सेंटर हो गए हैं, अब्सर्डिटी आ गई है उनके अंदर, ठीक है. उसके बाद फॉर्मलिज्म आ गई है. डिफरेंट जो शॉर्ट मूवमेंट्स हैं वो मिल के एक नई मूवमेंट को बना रहे हैं, मॉडर्न एज को, मॉडर्निज्म को. इस मॉडर्न एज में क्या है, लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, लोग मटीरियलिस्टिक हैं, लोग इंडिविजुअलिस्टिक हैं, लोग क्या हैं, अपने सोसाइटी को छोड़ के इंडिविजुअल बेनिफिट की तरफ ज़्यादा देखते हैं. और यही चीज़ें सारी लीड करती हुई किस तरफ ले जाती हैं, हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ ले जाती हैं. और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितना नुकसान हुआ है, कितने पोइट्स मारे गए, कितने राइटर मारे गए, कितने एक्टर और एक्ट्रेस मारे गए, कितने जो इंटेलिजेंट लोग थे, राइटर, थिंकर, फिलासफर, वो लोग मारे गए. जब जंग होती है तो उसमें तो कोई चीज़, नोबडी सी वेदर ही इज़ अ फिलासफर, राइटर और पोएट और लाइक दैट, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड. जंग में हमेशा डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है. इन जंग में हमेशा लिटरेचर को नुकसान पहुंचता है, कल्चर को पहुंचता है, साइंटिफिक चीज़ों को पहुंचता है, साइंस को पहुंचता है, डेवलपमेंट को पहुंचता है. इंसान 100 ईयर्स पीछे चला जाता है. जो डेवलपमेंट हमने जल्दी करनी थी वो बाद में हुई. इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत सारी जो जंगें आपस में लड़ी हैं, उन जंगों से हमारा इतना नुकसान हुआ है कि हम आज बहुत पीछे हैं. जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं कंट्रीज़, वो हमसे बहुत आगे चले गए, क्योंकि हम लोग वार्स में लगे रहे और अभी भी हम इन द स्टेट ऑफ वार ही हैं. तो ये जो जंगें होती हैं, ये लिटरेचर को नुकसान, सिविलाइजेशन को, आपके लिटरेचर को, आपके लोगों को, आपके थिंकर को, आपके फ़िलासफ़र को, सारे जो अजीम लोग हैं ये आपसे छीन लेती हैं. और किसी भी सोसाइटी का सरमाया क्या, कौन लोग होते हैं? अच्छे पोएट, अच्छे फ़िलासफ़र, अच्छे राइटर, अच्छे आथर. तो अच्छे जो लिटरेरी लोग होते हैं वो आपकी नेशन का सरमाया होते हैं. तो इस तरह वर्ल्ड वार में बहुत नुकसान हुआ. वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि 1910 के बाद जो था करैक्टर, ह्यूमन करैक्टर चेंज हो गया था. पहले ह्यूमनिज्म को लोग मानते थे, उसके बाद इंडिविजुअलिस्टिक हो गए, और क्या हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, मटीरियलिस्टिक हो गए. इंसान अपना फ़ायदा इंडस्ट्रियलाइज्ड कर दिया इस एज ने कंट्रीज़ को. इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, किसका? इंडस्ट्रीज़ का. इंग्लैंड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, लोगों की वैल्यू चेंज होगी, लोगों के मिलने के तरीके चेंज हो गए. आज भी आप इंग्लैंड के लोगों से मिले तो बगैर पैसे से आपके सलाम भी नहीं लेंगे. आपके साथ बेनिफिट है तो वो आपसे सलाम लेंगे, अदरवाइज दे आर नॉट फ्री टू टॉक विद यू, टू वॉक विद यू, टू हैव गपशप विद यू. दे आर नॉट गोइंग टू हैव गपशप लाइक पाकिस्तानी पीपल. इफ़ यू टॉक विद द पाकिस्तानी पीपल, दे विल सिट विद यू, दे विल टॉक ऑल द डे. बट वेन एवर यू सी the people, they are coming from America, they are from developed country, Germany or like that countries, they are not sitting with you to waste time. तो वो लोग आज भी आपके साथ बैठ के गपशप या टाइम या ज़ाया नहीं करते. तो आज भी वही एज का इन्फ्लुएंस है, मॉडर्न एज का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर. तो इस एज में
जैसे यानी वर्जीनिया वुल्फ जो बहुत बड़ी राइटर है उसी एज की, मॉडर्न एज की, तो वो कहती हैं कि इंसान जो है वो 1910 के बाद यानी 1910 के बाद ह्यूमन करेक्टर वाज टोटली चेंज्ड। देयर वाज अ ग्रेट चेंज इन ह्यूमन करेक्टर। वही चेंज जो है वो किस में हमने देखना है, लिटरेचर में देखेंगे, नावल में देखेंगे, पोइट्री में देखेंगे, उनके ड्रामा में देखेंगे। तो ये चेंज आया था मॉडर्न एज में। उन लोगों ने क्या किया था, जो पिछली जो कन्वेंशन थी, ट्रेडिशन थी, या विक्टोरियन एज से पहले का टाइम है या उसके बाद का टाइम है, जो जिन चीज़ों को वो फॉलो करते थे, जिन स्पिरिट को वो फॉलो करते थे, जिस मूवमेंट को में वो रह रहे थे, उससे उन्होंने हट के फिर लिखा है। तो अच्छा, एक तो ये ट्रेजेडी होगी कि वर्ल्ड वार वन जो है ये इसमें टुक प्लेस हुई, किस में, मॉडर्न एज में या मॉडर्न मोमेंट में। उसके बाद एक और इनके साथ हादसा हुआ है इसी एज के अंदर कि लोगों ने ये जो सबसे बड़ा टाइटैनिक जो था, इन्होंने एक बनाया था बहरी जहाज़, तो उसमें तकरीबन आलमोस्ट कोई 2500 लोग थे। दे फर्स्ट टाइम launched and all the great philosophers, the people, the literary people, and you could say the aristocratic, the baron, the lord, and like these people, the kings, like these people, they were on that ship. उस टाइटैनिक के ऊपर फर्स्ट टाइम उसको उन्होंने जब उसको स्टार्ट किया था, तो ये सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम उसके ऊपर मिनट से जो भी था उसकी टिकट वगैरह लेकर उस पर बैठे हैं। तो वो टाइटैनिक डूब गया था। उसमें भी बहुत सारे तकरीबन 500 तो क्रू मेंबर थे उसके। तो बाकी जो 2000 जो लोग थे वो कौन थे, वो अरिस्टोक्रेटिक थे, वो राइटर थे, वो आर्टिस्ट थे, वो एक्टर और एक्ट्रेस थे। तो वो लोग मारे गए, उससे भी बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा ये नुकसान हुआ। तीसरा ये वॉल स्ट्रीट का कोई था कि यहाँ पे लोगों ने, ये भी एक क्रैक हुआ था। तो उसके बाद फाइटिंग है, और ब्रिटिश जो थे लोग, इन लोगों ने, आपको पता है कि ब्रिटिश जो लोग हैं इन्होंने ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज़ में अपनी कॉलोनीज़ बनाई हुई थी। इंडिया भी था, अफ्रीका भी था, दीगर बहुत सारे कंट्री, चाइना और इस तरह के और कंट्रीज़ थे। इन कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। ठीक है, अब ये भी क्रम्बलिंग का शिकार है। क्रम्बलिंग मीन ये लड़खड़ा रही थी। इंग्लैंड वाज आल्सो क्रम्बलिंग दैट टाइम बिकॉज the people in different colonies they were revolting against England. अब वहाँ पे भी तहरीकें उठ रही थी, लड़ रहे थे लोग, फाइट कर रहे थे अपने हकूक़ के लिए। तो अब इंग्लैंड जो है ना बहुत सारे मसाइल का शिकार है, बहुत सारे कंट्रीज़ भी आपस में लड़ रहे थे। 1905 में जापान और रशिया की लड़ाई होगी, लिख लें। In 1905 Japan and Russia they fought and Japan won over Russia. अब जापान जो है रशिया से जीत जाता है, किसमें, 1905 में एक लड़ाई होती है। 1857 में यहाँ पे लड़ाई होती है बरसगीर के अंदर। तो उसके बाद यानी 1905 में लड़ाई जापान और रशिया की हुई है। उसके बाद इटली और इथोपिया जो है ये आपस में लड़ पड़े हैं। इथोपिया से भी इटली जीत जाता है। यानी टोटली जो सोसाइटी है वो टोटली फाइटिंग का शिकार है, लड़ाई का शिकार है, एक दूसरे के साथ ह्यू एंड क्राई का शिकार है। अब 1913 में ये टैगोर एक राइटर थे, उनको इंग्लैंड की तरफ से एक इनाम भी मिला था, कोई उन्होंने इनाम भी दिया था कि आप भाई हमारा साथ देंगे जो हम लड़ाई फाइट करने जा रहे हैं। तो 1914 और उसके बाद 1914 से 1918 तक एक वर्ल्ड वार होती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और उससे पहले यानी वो टाइटैनिक भी एक डूब जाता है, वो भी एक है। और उसके अलावा 1918 में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वार होती है तो 1918 में फॉर्म्ड होती है यूएनओ, ये भी लिख लें। इन 1918 यूएनओ वाज फॉर्म्ड। यूएनओ किस लिए फॉर्म, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ अक़वाम मुत्तहिदा। अक़वाम मुत्तहिदा कब फॉर्म्ड की है इन्होंने, 1918 में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है तो ये लोगों को खौफ आ गया कि ज़िंदगी बड़ी अनसर्टन है, लोग एक दूसरे के साथ ऐसे लड़ पड़ते हैं, पूरी दुनिया लड़ पड़ती है, तो हम कोई ऐसी यूनाइटेड नेशन बनाएं
जहाँ पे हम अपने मसाइल हल कर लें। तो फिर इन्होंने यूएनओ फॉर्म की थी। ठीक है जी। तो 1914 से 1918 तक क्या है, ये एक यानी जंग चली है। फिर उसके बाद यूएनओ फॉर्म की है उन्होंने। यूएनओ फॉर्म करने का मकसद ये है कि ये सारे जो मसाइल हैं इनको हम बैठ के हल कर लें। सिगमंड फ्राइड एक राइटर है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि ये इसी दौर का राइटर है। ये कहता है कि ज़िंदगी के अंदर जो हम आप लोगों के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, जो इंसान आपके सामने होता है असल में वो नहीं होता। सिगमंड फ्राइड कहता है, ये भी मॉडर्निस्ट राइटर है, मॉडर्निस्ट मूवमेंट का राइटर है, मॉडर्न एज का राइटर है। वो कहता है कि वट एवर यू आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वट एवर वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, वी आर नॉट द वन, the real one is a person whom we hide from each other। जो असल आदमी होता है, जो आप अपने एक दूसरे के हम सामने होते हैं, ये असल आदमी नहीं होता। असल आदमी वो होता है जो ड्रीम में होता है, जो अपनी इमेजिनेशन में होता है, जो थॉट में होता है, जो हिडन थॉट्स में होता है, जो हम अपने से यानी लोगों से छुपा के अपनी फीलिंग्स थिंकिंग्स जो रखते हैं ना, असल इंसान वो होता है। तो इस दौर में लोगों ने इसके ऊपर भी लिखना शुरू कर दिया, इंसान के साइको एनालिसिस के ऊपर, उसकी इमेजिनेशन के ऊपर, उसकी थॉट्स के ऊपर, कि वो कैसे सोचता है, वो कैसे ड्रीम करता है, वो कैसे बिहेव करता है सोलोलॉकीज़ पे और इस तरह की चीज़ों पे। तो लोगों ने उस लोगों का साइको एनालिसिस पे भी लिखना शुरू कर दिया। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्जीनिया वुल्फ बहुत बड़ी राइटर है इसी दौर की, मॉडर्निस्ट मूवमेंट की, मॉडर्न एज की। क्या करती हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कि इंसान के अंदर थॉट्स का एक फ़्लो है, बहुत बड़ी स्ट्रीम है, एक नदी है थॉट्स की। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? उसमें इंसान का गुस्सा भी है, उसमें एंगर भी है, उसमें लव भी है, उसमें फीलिंग भी है। यानी वैसे तो ये थॉट्स हैं, लेकिन ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये है कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, द पर्सन फीलिंग, इमोशंस, पैशंस, एंगर्स और जेलसी, ये सारी चीज़ें जहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसके ऊपर भी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। ये भी इसी एज का ही है। उसके बाद जी D.H. लॉरेंस हैं, इन्होंने इसी के ऊपर फिर काम करना शुरू कर दिया, रिलेशन के ऊपर, कि इंसान की हिडन जो सोच है वो कैसी है। उन्होंने उसके ऊपर एनालाइज करना शुरू कर दिया। क्या? गेटरूड। आपने को पता है कि हैमलेट के अंदर 2 कैरेक्टर्स थे। हैमलेट के एनालिसिस, उसके माइंड के एनालिसिस के ऊपर, यानी जिन लोगों ने पहले राइटर्स ने लिखा था उन कैरेक्टर्स के एनालिसिस शुरू कर दिए। हैमलेट और गेटरूड का रिलेशन क्या था, ओडिपस और जुगस्ता का रिलेशन क्या था आपस में। आपने पढ़ा ना ओडिपस? हैमलेट पढ़ा है? इडिपस रैक्स के अंदर आप देखें तो जुगस्ता और जो उसका रिलेशन था ओडिपस का, उन दोनों को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि उनकी टेंडेंसी और आपस में जो उनका सेक्सुअल रिलेशन था वो कैसे फॉर्म्ड हुआ था, कितनी अट्रैक्शन थी एक दूसरे की तरफ। और उसके बाद होमोसेक्सुअल बहुत लोग हो गए थे, कि मैन टू मैन रिलेशन, फीमेल का फीमेल के साथ रिलेशन, लेस्बियन रिलेशन। आज भी अगर आप देखें, यू गो टू अमेरिका एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, दे आर फॉर्मिंग bills that the man can marry to man, female can marry to female, so like that they have passed bills like that। तो इस तरह के बिल पास हुए हैं। तो उसके बाद फेमिनिज्म पे लोगों ने बहुत लिखा है इस दौर में। फेमिनिज्म पे आपको पता है ना, फेमिनिज्म भी एक मूवमेंट थी कि औरतों ने कहा कि हमें भी अपने राइट्स दिए। इसी दौर में मॉडर्न एज में ही फीमेल्स को भी राइट मिले वोट कास्टिंग के, उनको मीन से एक इंट्रोड्यूस करवाया गया। उन्होंने कहा कि आप मेल्स जो हैं, मेल्स ने आपस में रिलेशन बना के आपकी वजह से लड़ाइयाँ हुई हैं, आपकी वजह से वर्ल्ड वार हुई है, हमें भी थोड़ा सा चांस दें, हम लोग सोसाइटी को फॉर्म्ड करेंगे। फीमेल्स आगे आई, फीमेल्स ने लिटरेचर में काम किया, फीमेल्स ने मिनट से उनको इंट्रोड्यूस करवाया उनकी मूवमेंट को, उनको राइट्स मिले, उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। वो राइटर भी बनी, वो फ़नकार भी बनी, वो हर मैदान में टीचिंग में भी आगे आ गई। तो इस तरह फेमिनिज़म की जो मूवमेंट है वो भी इसी एज का एक हिस्सा है।
अच्छा, कुछ इसके जो राइटर्स हैं उनकी एज ज़रा लिख लें। W.B. यीट्स जो हैं वो भी इसी एज के राइटर हैं। वो ये कहते हैं, उनका जो ओवरऑल उनकी फ़िलासफ़ी है वो ये कहते हैं कि ओल्ड मैन, क्योंकि वो मॉडर्न लुक देते हैं, यानी ये चीज़ें तो इसके अंदर हैं कि वो होमोसेक्सुअल पे बात करते हैं, लेस्बियन है, हिडर रिलेशन के बारे में बात करते हैं, इन मेल का यानी जो सिस्टर टू सिस्टर रिलेशन है, हस्बैंड का वाइफ के साथ जो रिलेशन है, जो डिफरेंट ड्रामास के अंदर जो से साइको एनालिसिस है वो करने की कोशिश की इसी एज के राइटर्स ने। वर्ड्स वर्क वन से जो अफेक्ट हुए हैं उनकी तरफ से लिखना शुरू कर दिया। क्राइसिस, क्योस, क्रम्बलिंग और जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी उनको डिस्कस करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ मोरालिटी भी इसके अंदर कुछ शो करने की, रिलीजन पे भी लोगों ने काम किया है। फिलिप लार्कन जो है, मेरा खुद ये बड़ा फेवरेट राइटर है, ये कहता है पीपल हैव लेफ्ट रिलीजन, दे आर टोटली एग्नोस्टिक। नो, people have totally rejected religion and they are not going to church, rather they are following their individual passions, feelings, thoughts. They are not interested in Christ, no more interested in church or the worship of God. अब लोग मज़हब को छोड़ चुके हैं, they are not interested. W.B. Yeats कहता है कि this word is not good for the old people, the people who are old, the people who are you could say worthless for this society. That word is not गुड फॉर देम। कि जब लोग ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है तो लोग उनको छोड़ देते हैं, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनकी केयर नहीं करते। तो फिर T.S. एलियट ने भी इस पे काम किया। T.S. एलियट ने वेस्ट लैंड लिखी है। वो कहता है कि ये जो दुनिया है ये क्या वेस्ट हो चुकी है, हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर ली है, हमने इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर लिया है, हमने इंडस्ट्रीज़ लगा दी हैं, हमने न्यू टेक्नोलॉजी फॉर्म कर दिया है, हमने बहुत सारी चीज़ों को बिल्डिंग डेवलप कर दी हैं, आर्ट कल्चर में हर जगह पे हम आगे हैं, बट वी आर लैगिंग बिहाइंड इन ह्यूमैनिटी, वी आर नो मोर ह्यूमन, दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक अ वेस्ट लैंड, देयर इज़ नो, वी आर अ हॉलो मैन, हम टोटली हॉलो मैन हैं, हमारे अंदर कुछ नहीं है, हमारी इस वर्ल्ड के अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, ये लैंड जो है दिस इज़ नॉट वर्थेबल टू लिव, यहाँ पे लोगों की एक दूसरे के लिए लव नहीं है। जोसेफ कॉनरड ने भी इसी के ऊपर लिखा है और इसी तरह बहुत सारे राइटर्स हैं। इसने लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक जो है ये भी T.S. एलियट ने लिखा है। G.B. शाह ने इस पे बड़ा काम किया है कि G.B. शाह कहते हैं, G.B. शाह की लाइन बड़ी लिखने वाली है। G.B. शाह कहते हैं कि विलन इज़ नॉट ऑन द स्टेज। जो ड्रामा परफॉर्म करते थे ना, उन्होंने कहा कि विलन जो है ना, आप विलन को तलाश करते हो कि वो स्टेज में है, विलन इज़ नॉट ऑन द स्टेज, रादर विलन इज़ अमंग अस द ऑडियंस। कहता है कि विलन जो है वो ऊपर ड्रामा परफॉर्म नहीं कर रहा स्टेज के ऊपर, कि वो विलन नहीं है, विलन तो ऑडियंस के अंदर ही बैठा हुआ कोई ना कोई। सो ही वॉज दीज वर्ड बाय द G.B. शाह। अच्छा, G.B. शाह ने, जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने फ़ीमेल्स के लिए बहुत काम किया, फ़ीमेल की वॉइस के लिए, फ़ीमेल को वैल्यू, उनके राइट्स, वोट राइटिंग के लिए और उनकी मीन्स इम्पोर्टेंस को, फेमिनिज़म पे काम किया। किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शाह ने। उसने जैसे उन्होंने लिखा है एक मेजर बारबरा, बहुत ज़बरदस्त है इनका ड्रामा, अगर आप पढ़ें तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेजर बारबरा को आप पढ़ें, जोसेफ कॉनरड को पढ़ें, हार्ट ऑफ डार्कनेस इन्होंने लिखा है। क्लेवर होप्स ऑफ द फ्यूचर स्टॉप नाउ। अच्छा, 1939 में लिख लें, 1939 में W.H. ऑर्डन, लिख रहे हैं नाम इनका, W.H. ऑर्डन ने लिखा था कि क्लेवर होप ऑफ फ्यूचर स्टॉप नाउ। उन्होंने कहा था कि क्लेवर होप ऑफ फ्यूचर स्टॉप नाउ। कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उन्होंने, इन लोगों ने मॉडर्न एज में क्या देखा है, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज में इन्होंने क्या देखा है, इन्होंने देखा है जंग को देखा है, इन्होंने लोगों को मरते देखा है। तो कहते हैं कि हमारे अंदर होप नहीं है कि पता नहीं आगे नेक्स्ट ही लम्हे क्या हो जाएगा। देखिए, हमारी आज भी अगर देखें तो हम ट्रंप पे बेस कर रहे हैं। ट्रंप पता नहीं किस वक्त, ये ट्रंप और वो जो कोरिया के
किंग हैं, ये आपस में लड़ पड़ें, सॉरी कई कंट्री तबाह हो सकते हैं। तो आजकल की वो, इसलिए डब्ल्यू एच ऑर्डन कहता है कि क्लेवर होप हैज़ लॉस्ट नाउ, देयर इज़ नो मोर होप, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट, whether two countries are going to fight and they are fighting with each other, and this way our country will be destroyed. हमारे लिए कोई होप नहीं है, कहता है कि इस मॉडर्न एज में हम टोटली बेस कर रहे हैं किन के ऊपर, अपने किंग्स के ऊपर, अपने कंट्रीज़ के जो हमारे बादशाह हैं, हमारे किंग हैं, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पता नहीं वो कब किस वक्त किससे लड़ पड़ें और उसके बाद हमारी डिस्ट्रक्शन हो जाए, हमारे कंट्री की डिस्ट्रक्शन हो जाए, everything will be destroyed and we are no more, there is no more hope. अच्छा, इस एज की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो लिख लें। 1900 से ये शुरू होती है मॉडर्न एज। इंडिविजुअलिज्म लिखें, एक्सपेरिमेंटेशन लिख लें, सिंबलिज्म लिख लें, फॉर्मलिज्म लिख लें, फॉर्मलिज्म FORMALISM, फॉर्मलिज्म। ये 4-5 करेक्टरिस्टिक हैं, ये आपको पोइट्रीज़ में भी मिलेंगी, इनकी पोइट्री में मिलेंगे, इनके ड्रामा में मिलेंगे, इनके लिटरेरी वर्क में आप ये चीज़ें देखेंगे कि इंडिविजुअलिज्म, द people were giving value to individualism rather than society, community, country, or world. So they were not giving value to society rather than individualism. Individual अपना सोचते थे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटर, पीपल वर डूइंग मैनी experimentations. That was the age of science. People were creating doing different experiment. Even Darwin theory were introduced, and the people were even getting agnostic. They were losing faith in God, so they were no more trusting in God, and they were losing faith in God. तो इस दौर में लोग एग्नोस्टिक हो रहे थे, दीन को दूर हो रहे थे, मज़हब से दूर हो रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे, साइंस की एज थी। तो डेफिनेटली जो चीज़ सोसाइटी के अंदर हो रही होती है, उस वक़्त का जो उसकी कंडीशन होती है, एक्सपेरिमेंटेशन जो कर रहे थे या वो सोसाइटी जिस तरह की थी, वो लिटरेचर के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। सिम्बलिज्म को यूज़ करते थे, जैसे वेस्टलैंड में बहुत सारी सिम्बल्स यूज़ की हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बहुत सारी सिंबल अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। जो दूसरे दूसरे हैं, लॉरेंस हैं, वो यूज़ करते हैं। ये दीगर जितने भी पोइट्स थे या क्रिटिक्स थे या राइटर थे, वो सिंबल्स यूज़ करते थे सिंबलिज्म को। अब्सर्डिटी, मीनिंगलेस, इसका मतलब होता है मीनिंगलेस, कि दुनिया, वो कहते थे कि अब्सर्डिटी इन अ सेंस कि जो पोस्ट मॉडर्न जो इरा है, जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद की जो एज है, ये तो है ना मॉडर्न एज, इसके बाद पोस्ट मॉडर्न के आफ्टर मॉडर्न एज। अब देखें, जो एज को BC कहा जाता है, 420 BC अगर कहें हम, तो ये एज कौन सी बनेगी? मीन से बिफोर क्राइस्ट। अगर AD लिखें तो आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। AD होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, और BC बिफोर क्राइस्ट। ये याद रखना कि BC अगर किसी के साथ लिखा हो, किसी एज के साथ, तो वो एज कौन सी बनेगी? बिफोर क्राइस्ट। ये क्राइस्ट के पहले का दौर है। और जो उसके बाद आ जाएगा वो क्या आएगा? AD, ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो इसी तरह जो पोस्ट एज है, वो क्या मॉडर्न एज जो है, जो मॉडर्न 1900 से, जो मैंने अभी आपको बताया 1961 या 1550, तो ये एज जो है टोटली कौन सी है? मॉडर्न एज है। इसके बाद जो एज आएगी वो कौन सी है? पोस्ट मॉडर्न एज। पोस्ट मॉडर्न एज में क्या हुआ है? पोस्ट मॉडर्न एज में अब्सर्डिटी में लोग इन्वॉल्व हैं, फॉर्मलिज्म में इन्वॉल्व हैं, या और इज़म जो हैं वो इंक्लूड हो गए हैं। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कल, मज़ीद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कल सैटरडे भी है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जितना मैंने आपको पढ़ाया है, इसके अंदर से एक MCQ क्रिएट करूँ आपके लिए, एक पेपर बनाऊँ, और उस पेपर को आप सॉल्व करोगे। यू विल सॉल्व दिस पेपर, and in this paper you will be having almost 20 to 30 MCQ questions. The question will be taken from Old English
Anglo-Saxon period, it will be taken from the medieval age, it will be taken from Restoration period, Victorian period, and Elizabethan period. It will be taken from modern period, and of course we are going to get post-modern age as well. तो ये टोटली मैं आपके लिए एक MCQ 30 क्वेश्चन बना लूँगा. कल मैं आपको वो पढ़ा के पोस्ट मॉडर्न एज इतना ज़्यादा नहीं है, वो अब्सर्डिटी के बारे में जो राइटर्स हैं उनके बारे में जो भी है डिस्कशन हम कर लेंगे. तो ये एज, इनके जो मेन चीज़ें यही हैं कि इस एज के अंदर क्या हुआ था, इस एज में किस सन में ये क्या हुआ था, 1900 से 1961 है, या अब ये वर्ल्ड वार जो हुई थी उसका इम्पैक्ट क्या हुए थे, इसके राइटर कौन कौन से हैं. राइटर मैंने पहले भी बता दिए हैं, अब दोबारा फिर बता देता हूँ, इनके ज़रा नाम लिख लें. एलिज़ाबेथ बिशॉप लिखे नाम, 1911 से 1979 इनकी एज है, ये इसी दौर के राइटर हैं. बिशॉप एलिज़ाबेथ. जोसेफ कॉर्नर्ड, जोसेफ कॉर्नर्ड, JOSEPH, जोसेफ कॉर्नर्ड, CONARD. कॉर्नर्ड की एज है 1857 से 1857 1924. अच्छा, ये भी इसी मॉडर्न एज में आ रहे हैं. आगे डू लिटिल हिल्ड, DOOLITTLE, डू लिटिल हिल्ड, HILD हिल्ड. तो ये 1886 और 1961 है इनकी एज. TS इलियट की लिखें, जो मेन राइटर हैं उनको बस याद रखें. TS इलियट हैं, 1897 से 1962 इनकी एज है. 1888 से 1965, 1888 1965, TS इलियट. आगे है जी विलियम फॉकनर. विलियम फॉकनर जो हैं इसके स्पेलिंग लिखें, WILLIAM, विलियम, FAULKNER, फॉकनर. विलियम फॉकनर 1897 से 1962. जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस की एज है 1843 से 1916. DH लॉरेंस की लिखें. DH लॉरेंस जो हैं ये 1885 से लेके 1930 तक. WB यीट्स लिखें, 1865 से 1939. वर्जीनिया वुल्फ की लिखें, 1882 से 1941. So these were the prominent writer who worked in modern age, and they work in criticism. They were writing novel, drama, and other literary works. They were the main writer of that age. They reflected society. They told that society is crumbling, confusion, chaos. So they are suffering from different wars. The people and different movements are running inside this modern age, and that is why there is a great influence that was putting great influence on their thoughts, their actions, their writing, their authors. So everything was getting influence from what was happening in society. जो सोसाइटी में हो रहा था, जो एज में हो रहा था, वो उनको इफेक्ट कर रहा था. लोग क्या थे, मज़हब से दूर हो गए थे. लोग क्या मॉडर्न हो गए थे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था. ठीक है जी, मॉडर्न हो गए थे लोग, मज़हब से दूर हो गए थे. वेस्ट लैंड लिख दी इसमें. GB शाह ने इस पर क्रिटिसिज्म किया, बर्नार्ड शाह ने इस पर क्रिटिसिज्म किया. ठीक है जी, फिलिप लॉरेंस ने इसके बारे में लिखा, TS इलियट ने इसके बारे में लिखा, और उसको फील किया कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन अ सोसाइटी, it is totally bad because we are getting away from our religious
phenomena, our religious approach, we are getting away from it. So they try to reform society. आपको पता है जो राइटर्स होता है ना, राइटर आथर, चाहे वो कोई प्रोज राइटर है या कोई पोइट्री पोइट है, वो कोशिश करते हैं कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करें, जो अंदर उसके हो रहा है उसको करेक्ट करें, उसकी करेक्शन करें. पोइट जो होते हैं या राइटर होते हैं वो आम आदमी तो हो नहीं सकता. डेफिनेटली दे हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी टू राइट. तो वो उस वक्त की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं वेरियस वे से. तो इस दौरान में जो उनकी मिड से जो इंग्लैंड की क्रम्बलिंग कंडीशन है, इंग्लैंड के अंदर जो रेवोल्यूशन है, डेवलपमेंट है, फिर वो बहुत सारी कॉलोनीज़ उन्होंने फार्म की हुई है, उन कॉलोनीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो लोग भी बगावत कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने यूनाइट रखना है, वो सारी डिस्टर्ब. फिर छोटे छोटे कंट्रीज़ जो हैं वो भी आपस में लड़ रहे हैं, रशिया और जापान लड़ पड़े हैं, इथोपिया और इटली लड़ पड़े हैं, और फिर जो छोटी छोटी ताकतें हैं वो बड़ी बड़ी ताकतों को हरा रही हैं. जैसे रशिया को जापान ने हरा दिया, इथोपिया ने इटली को हरा दिया, कोई सोच भी नहीं सकता था. तो उसके अलावा डेवलपमेंट है, मज़हब से लोग दूर हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर, अपने प्रोज़ के अंदर, पोइट्री के अंदर क्रिटिसिज्म जो उन्होंने दिया राइटर्स ने, उन्होंने उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया उस एज की. तो कल इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट पोस्ट मॉडर्न एज, व्हाट हैपन इन पोस्ट मॉडर्न एज, विल बी टॉकिंग अबाउट दिस. मॉडर्न एज क्या है कि जिसके अंदर क्या है, मॉडर्निटी है, इनोवेटिव आइडिया है, नए ट्रेंड हैं, लोगों ने नई पिछली जो कन्वेंशन थी पोइट्री की या स्टाइल थी या लिखने के स्टाइल थे, उन्होंने उनको छोड़ के एक नए स्टाइल से लिखना शुरू कर दिया. और उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न में वो कहते हैं उनकी एक अपनी आप कह लें कि उनका एक अपना आइडिया है कि दुनिया के अंदर पोस्ट मॉडर्न लोग कहते हैं, जो राइटर्स हैं आप देखेंगे उनके अंदर, वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो कुछ है वो टोटली बेकार है, अब्सर्डिटी है. हम यहाँ पे बैठे हैं गपशप लगा रहे हैं, सब अब्सर्डिटी है, इसकी मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है. वो कहते हैं कि जब गॉड ने कहा है कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा, जैसे कि उनका बिलीव है क्रिश्चियन का कि क्राइस्ट आ गया, गुनाह सारे धुल गए, तौबा कर लें, जो मर्ज़ी करते जाएं, आप क्राइस्ट ने आपको माफ़ी ले दी है, तो सारा कुछ मीनिंगलेस है. जो दिल में आता है करो, खाओ पियो, ऐश करो. आपने देखा होगा कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सेक्सुअल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं या डिफरेंट बुराइयों में इन्वॉल्व हैं, साथ ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और फिर ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल बी फॉरगिवन बाय गॉड बिकॉज वी आर the dearest people and we will be forgiven and there is no more punishment, everything is absurdity, meaningless over here, whatever we are doing is meaningless. जब गॉड ने कहा है कि आपको माफ़ कर दिया है तो जो मर्ज़ी करते रहो, इस दुनिया की वैल्यू ही नहीं है, ये सारा मीनिंगलेस है. जो हम लिटरेरी वर्क कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, डे नाइट एफर्ट कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ सारा दिन, खप रहा हूँ, इसकी कोई मीनिंगलेस है उनके लिए. इन सारी चीज़ों को वो अब्सर्डिटी समझते हैं. सो जो नेक्स्ट हम पोस्ट मॉडर्न एज पढ़ेंगे उसमें यही चीज़ें डिस्कस होंगी. टुमारो इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट दिस एंड टुमारो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर यू MCQs. तो उस MCQs को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है. अगर आप उसको सॉल्व करने में कामयाब होती हैं तो आप पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर समझ गई हैं. देयर इज़ यू कुड से देयर इज़ नथिंग फॉर यू टू रिमेंबर आफ्टर दिस. इसके अलावा आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. यही चीज़ें जो हैं यही उसमें आ जाएंगी एग्ज़ाम में, इसी से रिलेटेड आ जाएंगी, आप आसानी से टिक कर लेंगी. आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो गया. उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ग्रेजुअली जो MA इंग्लिश का जो कोर्स है जो सबसे टफ़ है, उन चीज़ों को फिर हम डिस्कस करें. हम फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और टीचिंग पेडागोजीज़ इनको डिस्कस करें. ये भी आपको डिस्कस करवाऊँगा. जो टीचिंग मेथड्स हैं वो भी आपको डिस्कस करवाऊँगा. ठीक है. उसके अलावा हम थोड़ा बहुत करंट अफेयर को भी टच करेंगे. पहले हम थॉरली इंग्लिश लिटरेचर पे ग्रिप हासिल कर लें. इंग्लिश लिटरेचर से जो चीज़ें आनी हैं वो ना जाएं, ताकि हमारा PPSC इंग्लिश का जो इसके अंदर चीज़ें आ रही हैं हम उसको सारे को क्लियर कर लें. उसके बाद जो 10-10 नंबर के मार्क्स हैं वो उनको कवर करना आसान होगा. स्टे ब्लेस. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख के सेंड कर दें. अगर आपका क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क एज मच एज यू कैन. अगर क्वेश्चन है तो मॉडर्न एज से मुझसे पूछें.
ओके, अगर तब भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आपने मुझे लिख के सेंड करना है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर दूंगा, सेंड करूंगा। कल एमसीक्यू के लिए तैयार रहना। आज मैं कुछ कोशिश करता हूँ आपको सेंड करने की, ताकि आपका कोई आइडिया बन जाए। तो गेट रेडी फॉर योर टेस्ट टुमारो, इंशाल्लाह योर टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओवर हेयर। आपका मैं कल ये चाह रहा हूँ कि आपका टेस्ट ही एक बना के ना आपके सामने रख दूँ और अपनी मौजूदगी में अपने सामने सॉल्व करवाऊँ। क्या चाहती हैं आप, आपको दे दिया जाए या आप प्रिपेयर करके आप